Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely fine. I have made two videos on general organic chemistry. In the last two videos, and this is the third video, which will be based on the inductive effect. In the last two videos, let's recall the last two videos. In the first video, I have discussed the conditions for resonance, then homolytic cleavage, fission, then the conditions for homolytic cleavage. The first condition was necessary, the high temperature must be mandatory. Then in the presence of peroxide and in presence of H mu, that is sunlight, these three conditions were required for the homolytic cleavage. Now I also told you that in the mixture reaction, that when the covalent compound and the ionic compound both are given, so even when the temperature is not given, then the covalent bond will not show homolytic cleavage. But when the high temperature is given in the mixture reaction, then the covalent bond will show heterolytic cleavage, and as you know, heterolytic cleavage will results in the formation of ions. If it occurs in the carbon, that it results in carbocation and carbanion. So in the second video we have discussed nucleophiles, electrophiles, then the examples of electrophiles, nucleophiles, and all negatively charged species are nucleophiles. We have discussed, but all positively charged species are electrophiles. Is this statement correct or not? It is not correct, but it is correct that all negatively charged species are nucleophile. So the correct statement is all the positively charged species are electrophile except hydronium ion, ammonium ion, and metal positive ion. So can you give me the explanation why the metal positive ions are not considered as electrophile? So students, देखो, electrophile is deficient of electron. It will attack at the electron rich area. So electrophile अटैक करता है. सो मेटल पॉजिटिव आयन जब बनता है, मेटल पॉजिटिव आयन विल एक्वायर द स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन. सो अगर उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी तो उसको अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना. तो ये रीज़न होता है कि मेटल पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते. और देन हाइड्रोनियम आयन एंड अमोनियम आयन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते. इसलिए कुछ ल्यूइस एसिड्स इलेक्ट्रोफाइल हैं, हर कोई ल्यूइस एसिड इलेक्ट्रोफाइल नहीं है. देन हमने कहा था हर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल क्या है? जो न्यूक्लियस लवर है, जो न्यूक्लियस रिच स्पीशीज़ है, ठीक है. और वो कहाँ पर अटैक करता है? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया पे अटैक करता है. देन बेस क्या, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो. देन हमने क्या डिस्कस किया था, और रिकॉल करो. और हमने डिस्कस किया था हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की कंडीशंस. लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल एंड इट विल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस. और मिक्सचर रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके थे, और तो कुछ हमने डिस्कस किया नहीं था. बस यही था. हमने पिछली दो वीडियोज़ में हमने यही डिस्कस किया था. सो दिस इज़ द थर्ड वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट एंड इट विल बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट. सो लेट मी गिव यू शॉर्ट थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट का. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट इज़ अ पार्शियल, इट इज़ अ effect due to the electronegativity, and electronegativity is the permanent property of an element. So if inductive effect is permanent property because it based upon the electronegativity, which is also a permanent property. So it is a permanent effect. So it is due to the displacement of the sigma electron towards the more electronegative element. It is the displacement of the sigma electron towards the more electronegative element. एंड इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट. जैसे जैसे अगर हम दूर जाते जाएंगे तो इस इफ़ेक्ट का जो असर है वो कम होता रहेगा. सो इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड इट इज़ ड्यू टू द, इट इज़ नॉट मच कंसीडर्ड. बेसिकली मीजोमेरिक इफेक्ट इज़ मोर कंसीडर्ड दैन इंडक्टिव. सो बट हमें इंडक्टिव पढ़ना ही है. सो लेट स्टार्ट. हम थोड़ा सा डिस्कस कर, मतलब मैंने बता दिया, अब हम लिख लेते हैं, ठीक है. तो इंडक्टिव इफेक्ट हम लिख लेते हैं अब. So let's start with inductive effect. So inductive effect is, it is displacement of
sigma electrons towards more electronegative element, It is displacement of sigma electron towards the more electronegative element, and it is the permanent effect. It is permanent effect it is short range effect why it is permanent effect? Because it depends upon the permanent property of an element, and वो कौन सी permanent property है element की? वो है electronegativity. So more so it is because permanent effect, because it depends on permanent property of an element, which is electronegativity. So it is displacement of sigma electron towards a more electronegative element. It is permanent effect, it is short range effect. Then ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये भी एक कॉज है इफेक्ट का. ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस then statement is all functional group and halogen behave like minus I effect. All functional group and halogen behave like minus I. So it is statement which you have to learn. So ये माइनस आई और प्लस आई क्या होता है? चलो बताता हूँ मैं. एक होता है प्लस आई इफेक्ट एंड एक होता है माइनस आई इफेक्ट. सो ये प्लस आई और माइनस आई में डिफरेंस क्या होता है? और मैंने ये क्यों बोला कि ऑल फंक्शनल ग्रुप और हेलोजन है वो माइनस आई की तरह बिहेव करते हैं. सो ये माइनस आई और प्लस आई बहुत सिंपल सी चीज़ है. जो प्लस आई इफेक्ट होता है मतलब जो भी एलिमेंट या जो भी ग्रुप जो भी इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, तो वो आता है प्लस आई में. और जो भी एलिमेंट या जो भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ वो आता है, खींचता है तो माइनस आई में. ठीक है, मान लो कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ, अगर मैं इसको खींचूंगा अपनी तरफ खींचूंगा तो ये आएगा माइनस आई में. और अगर ये मेरा हाथ है, इसको मैं पंच कर रहा हूँ, ऐसे पंच मतलब पुश कर रहा हूँ मैं. अगर आप देखो मैं इस चीज़ को, कोई भी चीज़ को अगर हम पुश करें तो वो प्लस आई इफेक्ट है. किसी चीज़ को हम खींचें, पुल इज माइनस आई, पुश इज प्लस आई. सो कोई भी हेलोजन और कोई भी फंक्शनल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है. ठीक है, अब देखो अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगी, लेना मतलब खींचना. ठीक है, तो वो क्या शो करेगी? माइनस आई इफेक्ट. तो मैं ये कह सकता हूँ कि कैटायंस ऑलवेज बिहेव लाइक माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको भी, कैटायंस ऑलवेज cations behave like minus I effect. Cations behave like minus I effect. अनायंस के पास लोन पेयर होता है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है,
तो वो क्या देना चाहेगा पॉजिटिव चार्ज को, तो वो दे रहा है, दानवीर है, तो पॉजिटिव, तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. सो अनायंस बिहेव लाइक प्लस आई इफेक्ट. सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जिनको कमी है, उनको चाहिए तो वो खींचेंगे. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज behaves like minus I effect. Electron deficient species behaves like minus I effect. ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको. जैसे कि पहला एग्जाम्पल अगर हम लें तो CH3 और CH2. ये अब देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन्स. इसको कमी है ना, तो ये खींचेगा, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट करेगा. और ये दे रहा है इसको, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. एक बात और बताना भूल गया मैं, देखो मैंने बोला ऑल फंक्शनल ग्रुप बिहेव लाइक माइनस आई. तो अगर आप इसका बताओ कि ये क्या चीज़ है, फिर अगर मैं ये बना दूं CH3 CH2O, अगर इस पर मैंने ऐसे बना दिया तो ये भी फिर तो ये खींचेगा ना ऐसे. मैंने तो ये फंक्शनल ग्रुप ही तो हुआ ऑक्साइड, बट ये आयन है, ये आयन है, इसके पास खुद ही नेगेटिव चार्ज है. अगर इसने और इलेक्ट्रॉन खींचा तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये प्लस आई शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट. तो ये कुछ ऐसा नहीं ऐसा होगा. अगर इसके पास है तो ये देगा, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट. अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो माइनस आई क्यों करेगा, तो रिपल्शन बढ़ जाएगा ना. तो इसी तरह ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आई है तो वो सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस आई इफेक्ट नहीं शो करेगा, वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. सो जैसे यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए. सो एनीवेज CH3 और CH2 माइनस. अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 इलेक्ट्रॉन. दो इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर की फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में है, लोन पेयर की फॉर्म में है. सो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है नहीं, तो ये खींच तो सकता नहीं क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्लस आई शो करेगा. सो ये प्लस आई शो करेगा. ठीक है, तो अगर जैसे एक सेकेंड, सो नेक्स्ट CH3 CH2 CH2OH. तो अब बताओ कि ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई के प्लस आई. सो बेसिकली इसके पास अब ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, आप ये बताओ. ये बहुत बच्चों का डाउट है कि ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और प्लस आई. सोच के बताओ, सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो. इसमें इतना सोचना है ही नहीं. जो मैंने लिखवा दिया सत्य वचन, एकदम सही स्टेटमेंट. OH है, फंक्शनल ग्रुप है, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये माइनस आई इफेक्ट. सो कुछ हम इस पे एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे अब हमें क्लैरिटी हो जाए थोड़ी. एग्जांपल्स CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3NO2 CH3OH CH3F then CH3CN. सो अब हमें बताना है ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट. इसका हमें ऑर्डर बताना है. सो हम इसको A then B then C
देन डी, देन ई। सो ऑर्डर बताना है। तो देखो ये पॉजिटिव है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये फंक्शनल ग्रुप NO2 फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन खींचेगा और ये भी खींचेगा, फंक्शनल ग्रुप है। एक बात और, जितना S करेक्टर ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो हाई होगी, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द S करेक्टर। ये बात मैं बताना भूल गया था, तो आप अभी लिख लो। सो S करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब हमें बताना है कि इनमें से माइनस आई होगा वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। देखो ये जो CH3 है ये प्लस आई की तरह बिहेव कर रहा है, और इनमें से इन B, C, D और E में से किसी के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो सबसे बड़ी स्टेबिलिटी तो वो गेन करेगा जिसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए या जिसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो पहला तो आएगा ए। अब देखो मैंने बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब और उसमें कैटायन भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम NO2 का स्ट्रक्चर देखें तो NO2 कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसे एंड डबल बॉन्ड O, और ये कुछ ऐसे बनता है NO2, ये ऐसे जुड़ा हुआ है किससे, CH3 से। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड टूटा, मान लो कि एक ये बॉन्ड टूटा, इस पे आया और इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब तो देखो एक तो पॉजिटिव चार्ज, एक तो कैटायन बना, ऊपर से दो ऑक्सीजन एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है। तो सेकंड पर कौन सा जाएगा, ये B। अब देखो CN, देखो CN ये कुछ ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड टूटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एक कैटायन मिल गया, कैटायन मिला और दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी आ गया। तो कैटायन प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सो इस वजह से हम E को हम करेंगे। अब C और D में से देखो, इनमें से अब किसी के पास पॉजिटिव चार्ज तो आ नहीं सकता, तो और ये हेलोजन है और ये फंक्शनल ग्रुप है और दोनों माइनस आई की तरह बिहेव करते हैं, तो OH जाएगा या F जाएगा। सोचो ये पहला किसके पास हो, OH होगा या फिर F होगा, तो बोलो OH होगा या फिर F होगा। तो A B ये आपको तो क्लियर हो गए ना, पहले A आया, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है और वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, देन B इसलिए आया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्लस दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स, देन E इसलिए आया पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम। सो आप गेस कर सकते हो कि बचे कौन सी, C और D। तो अगर बाय चांस टूटता है तो इसमें से किसकी ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की ज़्यादा है ना, तो आंसर क्या होगा, D और फिर C। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मान लो कि मैंने लिया CH2F, CH2, then CH2 plus, then CH2NO2, CH2 plus, then मैंने लिया CH2 plus। ये है A,
ये है B और ये है C। तो हमें बताना है कि तीनों में से किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी हुई। अब देखो NO2 माइनस आई इफेक्ट का है, माइनस आई इफेक्ट खींचेगा। फ्लोरीन है, मैंने क्या बताया था, ऑल फंक्शनल ग्रुप एंड हैलोजेंस आर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो NO2 इज माइनस आई इफेक्ट मतलब खींचेगा। तो ये देखो इसने इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचना स्टार्ट किया, ये खींच रहा है यहाँ। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी और हो जाएगी, डेफिशिएंसी इंक्रीजेस। देखो उसी टाइप फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट, तो इसने खींचा, यहाँ पर भी खींचा, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। बट यहाँ देखो CH3 के पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्लस आई इफेक्ट देगा। तो यहाँ दिया ऐसे और यहाँ पर इसको, तो पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। और यही हमें करना है कि हमें तो चार्ज न्यूट्रलाइज करना है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी आएगी, C की। अब देखो B और F, इसमें कौन सबसे, देखो मैंने इसमें भी बताया था NO2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा दिखाएगा, ये ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा ना। क्यों? क्योंकि इसमें दो तो ऑक्सीजन एटम है और पॉजिटिव चार्ज भी है। क्योंकि जब ये टूटेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, अगर ये टूटा तो, और दो ऑक्सीजन एटम है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाता है। मतलब ये ज़्यादा खींचेगा, मतलब अपनी तरफ ज़्यादा खींचा तो ज़्यादा इस तरफ भी ज़्यादा खींचा, तो फिर जो पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है वो और बढ़ जाएगी, तो जिससे कि स्टेबिलिटी सबसे कम होगी B की। तो फिर आएगा C, फिर आएगा B, तो ये ऑर्डर होगा CAB। तो इसी टाइप हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन भी देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, मान लो मैंने लिया CH2NO2 CH2 माइनस, देन मैंने लिया CH2 CH3 CH2 माइनस, देन फिर लिया CH2 CH3 CH2 माइनस। ये है A, ये है B और ये है C। हमें इन तीनों में से स्टेबिलिटी बतानी है, किस कार्बन आयन की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। देखो अभी भी मेन हमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें तो भाई चार्ज न्यूट्रलाइज करना है। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज है, यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज CH2 माइनस के ऊपर नेगेटिव, तीनों केसेस में CH2 माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और हमेशा याद रखना, अगर नेगेटिव चार्ज होगा और अगर माइनस आई इफेक्ट होगा तो वो उस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ और माइनस आई इफेक्ट दे रखा है तो माइनस आई इफेक्ट उसको खींचेगा, तो पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी, मतलब पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी और बढ़ेगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो माइनस आई इफेक्ट हमेशा नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि वो खींचता है ना अपनी तरफ। अगर तुम कर्जे में डूबे हुए हो, मान लो तुम्हारे ऊपर 2-3 लाख का कर्जा है, ठीक है, और मैं तुम्हें मतलब खींच लेता हूँ, मतलब मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, तो मैं तुम्हें कर्जे से बचाया ना मैंने, ठीक है। या फिर मैं तुमसे और कर्जा ले लेता हूँ तो तुम और डूब जाओगे, समझ रहे हो। अगर तुम खुद ही माइनस में हो, अगर एक नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव इंसान ही तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है कि नेगेटिव को, और अगर तुम सोचो कि तुम नेगेटिव हो, एज्यूम, क्या पता हो भी सही अगर आप नेगेटिव इंसान हो तो आप किसी पॉजिटिव इंसान के साथ ही रहोगे कि और नेगेटिव इंसान के साथ रहोगे। पॉजिटिव इंसान के साथ अभी तो रहते हैं ताकि आप भी पॉजिटिव हो जाओ। तो मैं पॉजिटिव इंसान, मैं नेगेटिव इंसान, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं पॉजिटिव इंसान के साथ रहूँ ताकि वो थोड़ी नेगेटिविटी खींच ले, ठीक है। तो उसी टाइप से कमिंग बैक टू दिस, तीनों केसेस में CH2 माइनस के ऊपर माइनस है, मतलब CH2 के ऊपर माइनस है, और माइनस चार्ज कौन खींच सकता है, तो माइनस आई इफेक्ट। तो ये देखो NO2 माइनस आई दिखा रहा है, तो ये खींचा, यहाँ पर अपने ऐसे खींचा और यहाँ पर भी ऐसे खींचा। CH3 प्लस आई इफेक्ट और नेगेटिव दे रहा है, तो ये गया ऐसे और ये गया ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी इंक्रीजेज, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज, और यहाँ पर भी यहाँ पर मैंने दोनों जगह CH2 ले लिया। इसको रब करके यहाँ फ्लोरीन कर लो, सॉरी। तो माइनस आई इफेक्ट है, तो ये भी खींचेगा, तो ये खींचा और ये खींचा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज। और मैंने किसका बताया कि माइनस आई इफेक्ट NO2 का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फ्लोरीन से, तो NO2 सबसे अच्छी स्टेबिलिटी देगा, फिर देगा C एंड फिर देगा B। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंडक्टिव इफेक्ट अभी थोड़ा ब्रीफ इंटरव्यू मतलब ब्रीफ अकाउंट उसका ओवर है। देन हम नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ेंगे। देन एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, आप एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद कर लो। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आपको प्योर रटना है, CH2 प्लस, देन NO2, देन CN, देन F, देन H, NH2, ये ऑर्डर आपको प्योर रखना है। आप देख लो, इसी ऑर्डर से हमने, अगर आपको ये ऑर्डर पहले से ही पता हो तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही इस पर अप्लाई करोगे और ये हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो पूरी देखी अगर तो बिग थैंक्स। सो हम नेक्स्ट क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।